ایک اندھیرے کا سینہ چیرتی دل و دماغ پر ساختہ کاری کرتی اور رگوں میں خون کو ساکت کرتی، دل دھڑکاتی خوفناک اور دہشتناک کہانی، رات کے دل دہلاتے اندھیرے میں جنم لینے والی اپنی نوعیت کی عجیب ڈراؤنی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اپریل کا مہینہ اور گرمی ایسے پڑ رہی تھی جیسے کہ جون جولائی ہو۔ میں پیپر دے کر آ رہا تھا، 12 سے اوپر کا وقت ہوگا۔ موٹر سائیکل جیسے تپ رہی تھی، اوپر سے سورج کی تپش گرمی سے برا حال تھا۔ گاؤں میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے اس ہسپتال پر نظر پڑی جس کے نچلے کوارٹروں کو شتوت کے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس حلیے میں وہ عمارت بھوتوں کا مسکن لگتی تھی۔ لوگ اس کے قریب سے بھاگتے بھاگتے گزرتے تھے، بھی ان کوارٹروں سے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتا تھا۔ باقی لوگ تو ہسپتال کے ان کوارٹر سے سنی سنائی باتوں سے کتراتے تھے، لیکن میں نے تو خود ان کوارٹروں سے عورت کی چیخوں اور ہنسنے کی آواز سنی تھی۔ وہ ایسی آوازیں تھی جیسے کہ کوئی عورت نشے میں ہو۔ بس میں اس دن سے ان کوارٹروں کے پاس سے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ شام کے بعد کا وقت تھا۔ ہفتہ ہی ہوا ہے اس بات کو کہ میں کرکٹ کھیل کر گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ میں کوارٹروں کی بڑی دیوار پر مجھے زیتون کا پودا نظر آیا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں زیتون بالکل نہیں۔ میں اس پودے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور دیوار پر چڑھ کر اس کو اکھاڑنا چاہا۔ ابھی میں نے دیوار پر چڑھنے کے لیے جمپ لگا کر اوپر کی دیوار پکڑی ہی تھی کہ مجھے اندر سے کسی عورت کے کہکوں اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس عورت کا ہنسنا ایسا تھا جیسے نشے میں بندہ مدہوش ہوتا ہے۔ ان آوازوں کے کان میں پڑتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور میرا ہاتھ دیوار سے چھوٹ گیا۔ میں دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا زمین پر بری طرح سے گرا۔ بظاہر کوئی بڑی چوٹ تو نہ تھی، لیکن خراشیں اور گھٹنوں پر خوب لگی تھی۔ میں وہاں سے لنگڑا کر ایسا بھاگا کہ اپنی گلی میں داخل ہو کر دروازے کے سامنے پہنچ کر دم لیا۔ اچانک کوارٹروں کے درمیان پہنچتے ہی موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پٹرول چیک کیا۔ ٹینکی پٹرول سے چھن چھن کر رہی تھی، جسے دیکھ کر میں بدحواس ہو گیا اور جلدی سے کک ماری، لیکن موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی۔ میں دیوانوں کی طرح کک پر کک مارنے لگا، لیکن وہ تو اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میری نظر کوارٹروں پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اسی وقت مجھے ہلکا سا ایک سر دیوار کے پیچھے غائب ہوتا نظر آیا۔ سر پر 2 بڑے بڑے سنگ اتنی تیز دھوپ میں نے صاف طور پر دیکھے تھے۔ مجھے چکر آئے، ساتھ ہی ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ میں گرنے ہی لگا تھا کہ مجھے 2 مضبوط ہاتھوں نے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو اپنے سامنے سورج بابا کو کھڑے پایا۔ ان کے لمبے لمبے بال پسینے سے تر تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں دور سے بھاگ کر آئے ہوں یا پھر کوئی مشقت والا کام کر کے آ رہے ہوں۔ سورج بابا کی آواز میرے کان میں سرگوشی کر گئی۔ ان کا ایک ہاتھ میرے سر پر ٹک گیا، میں جو وہاں سے بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ ان کا ہاتھ سر پر ٹکتے ہی مجھ میں عجیب سا ایک حوصلہ آ گیا۔ سورج بابا نے میرے کندھے پر آستہ سے تھپکی دی اور کوارٹروں کے ایک طرف جہاں دیوار کی اونچائی تھوڑی کم تھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بڑھ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ سورج بابا ہمارے گاؤں میں ایک پر اسرار سی شخصیت تھے۔ انہیں اس گاؤں میں آئے سال ہوا تھا۔ لمبی گھنی سفید داڑھی، لمبی لمبی زلفیں اور چمکتا چہرہ، لوگوں کو ان کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ دن کو وہ گاؤں کے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھے سورج کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اسی لیے ان کا نام سورج بابا پڑ گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط اور لمبا سا بانس تھا جو کہ اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں ان کے پیچھے محتاط قدموں سے چل رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا اور آگے کی طرف دھکا دے کر دیوار پر چڑھا دیا۔ میں اوپر چڑھ کر دیوار پر بیٹھ گیا اور دوسری طرف اترنے سے جھجکنے لگا۔ سورج بابا 2 قدم پیچھے ہوئے اور دوڑ کر جمپ لگایا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ میری طرف دیکھ کر بڑے غصے سے اپنے سر سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اب کیونکہ سورج بابا آگے آگے تھے، اس لیے میں نے بھی ہمت کی اور ان کے پیچھے اتر گیا۔ یہ بائیں طرف سے پہلا کوارٹر تھا۔ اس کے چھوٹے سے صحن میں جھاڑیوں کی تعداد تھی۔ اس کوارٹر میں 2 بڑے کمرے تھے، جن میں سے ایک کا دروازہ پیچھے گیلری کی طرف بھی تھا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی مجھے عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے کہ وہ سندل وغیرہ کا دھواں ہوتا ہے۔ باہر بہت گرمی تھی، لیکن وہ جگہ بہت ہی ٹھنڈی تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہی سکون سا ملا۔
सूरज बाबा के पीछे जब मैं अंदर दाखिल हो रहा था तो ऐसा लगा कि कोई तेज तेज कदमों से पिछले दरवाजे से बाहर निकला हो। बस चंद सेकंड के लिए ये महसूस हुआ। हमने वो पूरा क्वार्टर देख डाला लेकिन हमें वहाँ कोई न मिला। क्वार्टर साफ सुथरा था, बिल्कुल भी मटी धूल न थी। ऐसा लगता था जैसे वहाँ कोई रह रहा हो। इसके बाद सूरज बाबा ने मुझे अगले क्वार्टर की तरफ जाने का इशारा किया। मैंने जल्दी से नाम सर हिलाया। मेरी नजरों के सामने इस वक्त वो सर आ गया जिस पर 2 सींग भी थे। सूरज बाबा ने घूर कर मुझे देखा और होंठों को आपस में मिलाकर अजीब से अंदाज में मोटे मोटे बना लिए। इनका ये हुलिया देखकर मैं पीछे खिसका लेकिन इन्होंने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। हौसला कर। एक दफा फिर इनकी तेज आवाज की सरगोशी सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कान में सरसराते हुए सीधा दिमाग में जा लगी हो। मेरा ज़हन सुनसा हो गया और मैं चुपचाप सूरज बाबा के पीछे चल पड़ा। हम दोनों मुख्तात अंदाज में चलते हुए दूसरे क्वार्टर में दीवार के जरिए कूदे जहाँ शतूत के दरख्तों ने सहन को ऐसा घेरा हुआ था कि अंधेरा सा हो रहा था। मेरे दिल में हौल से उठने लगे। फिजा में बू और धुआं फैला हुआ था। सूरज बाबा बू सूंघकर नाक चढ़ाने लगे और मुझे वो दिन याद आ गए जब ये अस्पताल नया नया बना था। सारे क्वार्टर साफ सुथरे और रहने के काबिल थे। अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर दिलकश नैनो वाली गोरी सी औरत थी जिसका शोहर एयरफोर्स में ऑफिसर था। मैं उस वक्त छोटा सा था, 6-7 साल का, लेकिन मुझे अब भी वो फैमिली अच्छी तरह याद है जिनकी एक प्यारी सी हमारी हम उम्र बच्ची थी। मेरी रंगत भी साफ सुथरी थी। मुझे अम्मी हमेशा नहलाकर रखती थी क्योंकि 3 बहनों के बाद मनतों मुरादों से मैं दुनिया में आने वाला बच्चा था। इसलिए वो बच्ची मुझसे खेलती थी और रात देर तक हम इनके घर VCR पर फिल्में देखते रहते थे। एक फिल्म तो मुझे अब तक याद है, मिस्ट्री और सस्पेंस लिए फिल्म थी। इमारत की दूसरी मंजिल पर एक सेफ पड़ा था जो कि एक जादुई अमल करता है और इसका राज एक डायरी में लिखकर इस सेफ में रख देता है और फिर जादू के जरिए इसे ऊपर वाली मंजिल पर रख देता है। खुद वो कहीं और चला जाता है। इसका राज सबसे पहले इसकी मुलाजमा हासिल करने की कोशिश करती है, इसलिए निकलने से पहले वो अपने पड़ोसी को इसके बारे में बताती है। लेकिन जब वो मुलाजमा इस सेफ को खोलने के लिए छूती है तो इसे करंट लगता है और इसके मुंह से बहुत जोरदार चीख निकलती है और वो एक रबड़ का हैंडल बनकर उधर ही गिर जाती है। जादूगर ने इस सेफ पर कोई जादुई अमल किया होता है। इसके बाद कई आदमी जादू में दिलचस्पी लेने वाले इस सेफ तक पहुंचते हैं लेकिन इसे छूते ही हैंडल बनकर रह जाते हैं। इस फिल्म का आखिरी सीन तो बहुत ही जबरदस्त और फाइटिंग वाला था जब 4-5 आदमी इस सेफ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को गिराने तक विरत करते हैं। आपस में लड़ते हुए 4 गिर जाते हैं और एक सेफ तक पहुंच जाता है। वो सेफ को छूने ही लगता है। पीछे से आमिर कहीं से वापस आते ही सेफ को देखने के लिए आ जाता है और वो आदमी हैंडल बनने से बच जाता है। सूरज बाबा ने मुझे डंडे की नोक चुबाई तो मैंने पलटकर इनकी तरफ देखा। वो मुझे अंदर कमरों की तरफ जाने का इशारा कर रहे थे। मैं अंदर जाने से डर रहा था। सूरज बाबा ने मुझे बाएं बाजू से मजबूती से पकड़ा और धकेलकर कमरे के अंदर कर दिया। मैंने डरते डरते इधर उधर देखा। कमरा खाली था। दूसरा कमरा भी खाली था लेकिन वहाँ एक चटाई बिछी थी जिसके ऊपर और फर्श पर सिगरेट के टोटे बिखरे हुए थे जिन्हें देखकर सूरज बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए सर हिलाया। ये सब देखकर मुझे कुछ हौसला होने लगा क्योंकि ये सब यहाँ इंसानों के होने की निशानियाँ थी। इसके बाद हमने तीसरा और फिर चौथा क्वार्टर भी देख डाला लेकिन वहाँ हमें कोई भी आदमी ना मिला। सूरज बाबा बेचैनी से इधर उधर टहलने लगे, मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगे। इसके हाथ में पकड़ी हुई लाठी फर्श पर जोर जोर से लगने लगी। वो बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। इन डंडे से फर्श को जोर जोर से ठोंक रहे थे। अचानक इनकी लाठी की जरब थम गई। इनकी आंखें किसी गैर मरी नुक्ते पर जम गई और इन्होंने मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके तीसरे क्वार्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरे मुंह से निकला या अल्लाह खैर। क्वार्टर में दाखिल होते बाबा तीसरे और चौथे क्वार्टर की दरमियानी दीवार के पास चले गए और इसे लाठी से ठोंक बचाकर देखने लगे।
उन्होंने जोर से चोट मारी तो एक ईंट दूसरी तरफ खिसक गई। मैं सोच रहा था कि बाबा नीम पागल है, जब कोई ना मिला तो भाग गए होंगे, अब दीवार तोड़ने का क्या फायदा। अभी मैंने इतना ही सोचा था कि बाबा ने 3-4 ईंटें और उखाड़ दी। इसी वक्त बाबा ने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। जाओ दूसरी तरफ दीवार देखो। इनका हुक्म सुनते ही मुझे करंट सा लगा और मैं भागते हुए चौथे क्वार्टर में पहुंचा। दोनों क्वार्टरों की मुश्तरका दीवार को देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। वहां से तो एक ईंट तक नहीं उखाड़ी थी। दूसरी तरफ से एक चीख की आवाज गूंजी। मैं भागते हुए उस तरफ पहुंचा जहां दीवार के पास सूरज बाबा लाठी ताने खड़े थे और इनके सामने 3 आदमी जमीन पर लोट-पोट हो रहे थे। इनमें से एक के सर पर अजीब सी विग थी जिसके ऊपर 2 सींग थे। नजदीक से गौर से देखने पर ही विग का पता चलता था, ना तो सींग और विग सर ही महसूस हो रहा था। इस आदमी का चेहरा भी काफी भयानक दिखाई दे रहा था। इसके बाद बाबा दीवार के एक कोने में एक दरवाजे में दाखिल होके इनके पीछे मैं भी घुस गया। दीवार के साथ फासला छोड़कर एक दीवार इतनी महारत से बनाई गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि ये एक नहीं 2 दीवारें हैं और इनके बीच इतना खला था। 4-5 आदमी आसानी से बैठ और सुकड़ सिमट कर लेट भी सकते थे। सूरज बाबा गुस्से से देख रहे थे। अंदर खला में एक कोने में 2 गठरियां सी पड़ी नजर आई थी। जब मैंने आगे होकर इनको गौर से देखा तो हैरत ज़दा रह गया। वो गठरियां नहीं बल्कि 2 औरतें थी। दोनों ही नशे में धुत लग रही थी। जब इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मुझे एक और झटका लगा क्योंकि इनमें एक शादो थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर इसको सहारा देकर उठाया। वो नशे में धुत थी। मुझे इसे इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। शादो पिछले 4 दिनों से गायब थी। सब लोग यही समझ रहे थे कि वो किसी के साथ भाग गई होगी, जबकि मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता था। जब सूरज बाबा ने वहाँ 2 लड़कियां खास तौर पर शादो को देखा तो इनकी आंखें उल्लू की तरह गोल गोल घूमने लगी। वो गहरी सोच में पड़ गए। जल्दी जल्दी तीनों आदमियों को इन्हीं की कमीज से कसकर बांध दिया। सूरज बाबा ने कुछ सोचने के बाद मुझे वहीं रुकने का कहा और खुद शादो और दूसरी लड़की को लेकर वहां से निकल गए। ठीक आधे घंटे बाद एक बंद गाड़ी में बैठकर आए और इन तीनों को इस गाड़ी में बिठाकर लेके मैं इनसे पूछता ही रह गया कि वो कौन है और ये सब क्या है, शादो और वो लड़की कहाँ है। लेकिन इन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब ना दिया। मैं की पहली अजान होने लगी थी। इनकी नजरों से ओझल होते ही मैंने सोचों में गुम मोटरसाइकिल को हाथ लगाया ही था कि हाथ झटक कर फूंके मारने लगा। मोटरसाइकिल इस कदर गर्म हो रही थी कि बहुत मुश्किल से मैं मोटरसाइकिल को लेकर घर पहुंचा। मेरी सोच की सुई शादो पर ही अटकी हुई थी। शादो, जिसका असल नाम शादा था, यतीम बच्ची थी। बाप अमेरिका में काफी अरसा रहा और मरने से पहले अपने साले यानी शादो के मामू को अपने पास बुलाया और अमेरिका में सेटल किया। लेकिन वो खुद इसके बाद जल्द ही चल बसा। शादो की माँ पहले ही फौत हो चुकी थी। अब वो अपने मामू के घर यानी के मामी के साथ हमारे ही गांव में रहती थी। वो मुझसे 6 साल बड़ी थी, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन ही से हमारी जोड़ी खूब हल्ला गुल्ला करती और शरारतें लोगों के नाक में दम करना हमें बहुत मजा देता था। शादो MA कर चुकी थी, अब भी इसमें बचपना जिंदा था। अभी कुछ दिन पहले ही शाम के वक्त नहर के पास बैठा मैं पेपर की तैयारी कर रहा था। मुझे घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई थी और तांगे की टन-टन सुनाई थी। मैं पढ़ाई में ही मगन रहा, पलटकर ना देखा। पढ़ाकू हमारी तरफ भी पलटकर देख। शादो की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पलटकर देखा तो इसे बिल्कुल कोचवान के अंदाज में सर पर सफेद दुपट्टे की हल्की सी पगड़ी बांधे देखा। तो ना देखो, मुझे शर्म आ रही है, इसने चेहरे पर सुर्खी बिखेरते हुए कहा। मेरे मुंह से बेसाख्ता कहका निकल गया और मुझे वो दिन याद आए जब वो मुझे खामोशी से देखती थी और मैं शर्मा जाता था तो वो कहती थी कि ओए शर्माना तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं लड़की हूँ, तुम लड़के होकर शर्मा रहे हो। इसके जवाब में मैं शर्मिंदा सा मुस्कुरा देता। चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी साथ होवे। इसने चाबक हवा में लहराया, घोड़ा हिनहिनाने लगा। शादो अपनी सुरीली आवाज में गाने लगी। शादो बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसकी आवाज बस ना पूछिए। मैंने
कानों पे हाथ रख लिए, तांगे से किसी हीरो की तरह छलांग लगाई। मैं किताबों की तरफ मुतवज्जा हुआ। इतनी देर में इसने पीछे से मेरे दोनों बगलों में हाथ डाले और मुझे किसी बच्चे की तरह उठा लिया। 1 मिनट, किताबें तो समेटने दो। मेरे मुंह से बा मुश्किल निकला। उस दिन शाम के निकले हम, रात गए वापिस आए। चांदनी रात थी। इधर मेरे पेपर खत्म हुए, इधर शादों की तरफ से बुलावा आ गया। मैं भागता हुआ इसके घर पहुंचा। इससे पहले भी मैं इसके घर के चक्कर बेचैनी से लगाता रहता था, लेकिन वो ना थी। नशे में मैंने इसे बामुश्किल पहचाना, लेकिन आज मेरे सामने वो पुरानी शादो बैठी थी। इसने अपने हाथ से आम का जूस बनाकर मेरे सामने रखा। मुझे आज वो बहुत ही संजीदा लग रही थी। वो जो कुछ भी हुआ, प्लीज इसे भूल जाओ। बस इतना यकीन करो कि इसमें मेरी गलती बिल्कुल ना थी, मेरा कोई कसूर ना था। मैंने इसकी तरफ हैरत से देखा। इसके अल्फाज लड़खड़ा से गए। मैं नहीं समझती कि तुम्हारे लिए वो सब जानना जरूरी है। हाँ, मगर तुम्हारे लिए ये जानना, बल्कि मेरे लिए तुम्हें ये बताना कि मैं और ममानी अमेरिका जा रहे हैं। इसकी आखिरी बात सुनकर मैं हैरत से खड़ा हो गया, क्योंकि ये वही शादो थी जो मुझे कहती रहती थी कि आतिफ, मैं अमेरिका जाने के बारे में सोच तक नहीं सकती। बात सुनकर मैं हैरान हुआ। इंसान को अपनी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जिनके बारे में इसने कभी सोचा तक नहीं होता। जूस मैंने आधा पीकर टेबल पर रख दिया था और खड़ा इसकी बात सुन रहा था। अचानक वो उठी और बुराई हुई आवाज में बोली, मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने को, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसने ऐसी हरकत की कि मैं चौंक पड़ा और वो आंसू पूछती हुई दीवार के साथ जाकर खड़ी हुई। के दीवार तक पहुंचते ही मुझे होश आया और मैंने रुमाल निकालकर जल्दी से दाएं गाल को रगड़ डाला। इसी वक्त बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। अगर लिपस्टिक इसके होंठों की गाल पे रह गई हो तो नजर ना आए। मेरी ये हरकत देखकर शादो मुस्कुराने लगी। आंखों से बहते आंसू और चेहरे पर फैली मुस्कुराहट बड़ा ही अजीब मंजर था। इसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की और उसी रात 11 बजे इनकी फ्लैट थी। मैं इससे मोहब्बत तो नहीं करता था, लेकिन दोस्त होने के नाते मेरा दिल बड़ा उदास था। हम दोनों की बहुत ही खुशगवार यादें थी। मैंने FA का इम्तिहान दिया था, अब बिल्कुल फारिग था। अब्बू मजदूरी करते थे, लेकिन मुझे पढ़ाना चाहते थे। पढ़ाई में मैं 8वीं क्लास तक बहुत लायक स्टूडेंट था। फिर अचानक ज़हन ढीला डाला सा होने लगा। पहले तो पढ़ने को दिल ही न चाहता, अगर पढ़ने लग ही जाता तो ज्यादा याद ना कर पाता। बस जैसे तैसे मैट्रिक से FA और अब इम्तिहान देकर फारिग था। ये मैंने एक स्टोर में सेल्समैन की मुलाजमत कर ली। 10 से रात 11-12 हो जाते थे। रात जब मैं छुट्टी करके आता तो सीधा रास्ता, जो कि कुछ लंबा था, इस्तेमाल करने की बजाय शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता, जिस पर एक पुराना कब्रिस्तान था। ताल के क्वार्टरों में से जिन और चुड़ैल वगैरह तो ना निकली, लेकिन हर इंसान के अंदर इनसे डर कुदरती तौर पर मौजूद थे। मुझे इस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए खौफ महसूस होता था, इसलिए मैं वहां से तेजी से गुजरता था। एक रात लाहौर से कुछ सामान आया।